Hello everyone. So we have started our uh, unit 3, I guess, and in the unit 3 we are done with the decision making, branching and looping statement. Okay, we have seen if else statement, then if else के बाद देखा हम लोग ने switch statement, and then after that in the looping statement we have completed the for loop, do while loop and while loop. Okay, so while loop and do while loop, uh, the nature of the while loop and do while loop is same, but do while loop perform the specific task at least once, which cannot performed in the while loop. If the condition is wrong, then the entire block gets terminated at the initial point. But in the case of do while loop, that thing is not followed. Okay, so I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा वो. And now we are going to see our last topic, which is looping nested loops in C programming language, and after that break continue थोड़े बहुत statement है. So in this today's lecture we are going to complete all those things, and I hope अपना chapter 3 unit 3 भी खत्म हो जाए ये lecture में. Okay, so let's start with the last concept, which is nested loops and break continue statement. So see here, we are done with the while loop, for loop, do while loop, and last topic is nested loop. ये होने के बाद ये थोड़े लूपिंग के कंट्रोल स्ट्रक्चर, सॉरी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू. ओके, सो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है. कंसिडर करते हैं कि आज के लेक्चर में होना चाहिए. लेट्स सी. सो नेस्टेड लूप्स. ओके, जैसे हम लोग ने नेस्टेड लूप्स इन ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देखा था. नेस्टेड इज नथिंग अबाउट द लूप इनसाइड अनदर लूप. एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है. ठीक है, दैट इज नथिंग अबाउट अवर नेस्टेड लूप. सो सी प्रोग्रामिंग अलाउज टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप. ओके, मतलब क्या, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर. सी हियर, फॉर इनिशियलाइजेशन, ये जो उसका पूरा सिंटैक्स है वो, एंड इनसाइड दिस वन फॉर लूप देयर इज अनदर फॉर लूप. ऐसे हम लोग इन नंबर तक कर सकते हैं. इन नंबर मतलब इन्फाइनेटली, जितने नंबर के आपको चाहिए उतने. ठीक है, ये फॉर लूप के लिए था. द सेकेंड वन इज फॉर while loop. Okay, see here, my first while loop, after that second while loop, statement and statement, and do while loop, do this statement, after that do another statement, and while condition, this while condition is belongs to this do loop, and that while loop uh, condition is belongs to that do occurrence. Okay, एग्जाम्पल देखते हैं उसका. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल में they can use the one for loop inside another for loop. So see here, I am creating one program. The following program uses a nested for loop. Okay, मतलब उन लोग ने बता दिया है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा लूप यूज करने वाले, नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप इज नथिंग अबाउट अवर one for loop inside another for loop, and which can print prime numbers from 2 to 100. अभी प्राइम नंबर मतलब क्या, द नंबर इज डिविजिबल ओनली बाय नंबर इटसेल्फ एंड वन. ओके, मतलब वन और वो नंबर से जो डिविजिबल है वो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर अभी आपको वो बेसिक मैथमेटिक्स है, यू नो ऑल दिस थिंग, और हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था ये कि प्राइम नंबर क्या होता है. ठीक है, सो टू प्रिंट दोज प्राइम नंबर, रेंज, द रेंज ऑफ दिस प्राइम नंबर इज फ्रॉम 2 to 100. सो 2 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर है वो अपना ये प्रोग्राम प्रिंट करने वाला है. ओके, सो टू डू दैट वी are going to use this for nested for loop structure, means for loop inside the another for loop. Okay, so let us see. हेडर फाइल है, हेडर फाइल आपको पता है, अभी मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ. मेन फंक्शन भी पता है क्या होता है. Okay, now this is my main function body. So inside the main function I am creating two local variables named as I or j, and the data type of the variable is integer. Okay, यहाँ पे देखो int लिखा है मैंने. Okay, after that my first for loop tells us that I is equal to 2 because the range is starting from 2, right? So मुझे obviously इनिशियलाइजेशन के टाइम उसकी वैल्यू सेट रखनी है 2.
जो मैं सेट रखता था 0 या फिर 1, अभी डिपेंडिंग ऑन द नेचर दैट वैल्यू कैन बी चेंज्ड. ओके, our problem statement tells about that we have to print the prime numbers ranging from 2 to 100. So that's why we are initializing here the value of I is equal to 2. Okay, then I less than 100. Obviously 2 से लेके 100 तक चाहिए. So starting कर रहा हूँ मैं 2 से आणि maximum असणारे value 100. So I less than 100 and after that I plus plus. Okay, I plus plus is nothing about our increment operator. I is equal to I plus 1. Okay, but inside this for loop I am implementing another for loop as j is equals to 2 because j is my another variable. Okay, so I am assigning the value. Now see here, for loop is create the instances. Okay, instances for the values, and on that instances we are actually printing, we are actually assigning the values using the printf statement. So I से सॉरी ये फॉर लूप से सिर्फ ब्लॉक क्रिएट होने वाले, वो ब्लॉक में हम लोग ये वैल्यू एंटर करने वाले. ठीक है, फॉर से मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता. फॉर इज द लूपिंग स्ट्रक्चर विच कैन create, which can implement one block areas for the variables. Okay, so inside my another the second for loop I'm assigning initializing the value of j is equals to 2. Okay, उसके बाद j is less than equal to I upon j. Now see here the logic behind this for loop is here is the condition is j is less than equal to I divided by j. Okay, and initially the value of I is equals to 2. Okay, so j is less than equal to 2 divided by 2 ऐसे होने वाला. ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है. सो 2 डिवाइड बाय 2 कितना है 1. ओके, सो इफ द j इज लेस देन और इक्वल टू दैट वैल्यू, मतलब यहाँ पे j की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू अभी इसकी वैल्यू क्या है 1. सो ये हुआ है, हो रहा है क्या 2 is less than equal to 1? No. So that value, that for loop is not going to be performed. Okay, and j plus plus हो रहा है. If now my another, अभी देखो यहाँ पे for के अंदर मैंने for लिखा है and inside this for loop I am using another decision making statement as if I percentage j, I modulus j means the remainder of this value is not equal to 0. Okay, is not equals to 0. मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, ये है ना, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है दैट्स साइन इज यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू. सो I परसेंट j नॉट इक्वल है, सो ब्रेक मीन्स इफ फैक्टर फाउंड नॉट प्राइम, मतलब इसका रिमाइंडर अगर 0 मतलब 0 आ रहा है सो दैट विल बी नॉट माई प्राइम नंबर. ओके, वो क्या होगा, वो कंप्लीट नंबर होगा. वी कंसिडर दैट नंबर एज अ कंप्लीट नंबर. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा फोकस रखो कि सब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पे पहले आई की 2 वैल्यू आ गई. ओके, 2, उसके बाद ये जे की 2 वैल्यू, 2 लेस देन 2 मतलब 1 आ रहा है जे प्लस प्लस. ओके, सो इफ आई परसेंटेज जे की वैल्यू नॉट इक्वल है सो वो ब्रेक कर देगा. अदरवाइज इफ j इज ग्रेटर देन I divided by j, so it can print this value. So this logic is nothing about our prime number logic. ये जो logic है ना अपना, ये prime number logic, prime number का logic. So यहाँ पे कुछ ज़्यादा complications create करने की जरूरत नहीं है. The logic is too simple. सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. जैसे कि prime number कौन सा है, the prime number is divisible by 1 and the number itself. मतलब वो खुद का डिविजिबल है और वो 1 नंबर का डिविजिबल है. वो बाकी छोड़ के अगर कुछ भी है, जैसे कि 4 है, तो 4 कैन बी डिवाइड बाय 2, 4 and 1, मतलब जिसके हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 है, दैट नंबर विल बी माई कंप्लीट नंबर. एंड इफ द फैक्टर ऑफ द नंबर इज ओनली 2, दैट नंबर इज कंसिडर्ड टू बी प्राइम नंबर. क्लियर? सो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग दिस 2 नेस्टेड फॉर लूप्स एंड आई एम सिंपली प्रिंटिंग. ओके, सो यहाँ पे देखो i की वैल्यू 2 है, हाँ 2, और j की वैल्यू भी 2 है. j सिर्फ यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म क्रिएट कर रहा है लॉजिक चेक करने के लिए. ठीक है, सो 2 परसेंटेज 2
कितने वैल्यू आ गया 0, हाँ 0 आ रहा है, मतलब क्या इज नॉट इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई प्रिंटिंग दिस वैल्यू एज अ 2 इज अ प्राइम। उसके बाद 3 आ गया, हाँ 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, तो इसलिए वो 3 इज प्राइम आ रहा है। वैसे 5 7 जितने भी है 2 से लेके 100 तक वो सारे प्राइम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। See here, this is another program. The problem statement is here we can use different inner and outer loops. So in this case, लूप इंसर्ट द लूप में हम लोग ने क्या किया, फॉर के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल ऐसे देखा था, या फिर डू वाइल के अंदर डू वाइल, बट इन दिस केस वी आर actually create one while loop inside the सॉरी फॉर लूप इनसाइड द वाइल लूप। ओके, एक वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप है, ये जावा का प्रोग्राम है। स्किप दिस पार्ट, लॉजिक तो सेम ही है, सिर्फ आपको ऊपर क्या लिखना है प्रिंटफ एंड ऑल, मतलब वॉइड मेन हैश इंक्लूड stdio.h सेम ही है, बाकी ये सिर्फ ये सेम ही रहेगा। ये जो ऊपर के उसके पार्ट्स है लाइक लाइब्रेरी डेफिनेशंस एंड हेडर फाइल्स एंड ऑल, वो पार्ट चेंज होने वाला है सिर्फ। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द लॉजिक, क्योंकि लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है। सो द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज, देखो यहाँ पे ऐसे आउटपुट आने वाला है, वी क्रिएट वन पिरामिड 1, उसके बाद 2 2, 3 के लिए 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5। ओके, सो back to point, here we are creating one local variable, I is equal to 1, the value is 1, data type is integer. Okay, inside the while loop I am passing condition I less than equal to 5, आई की वैल्यू कितनी है 1, लेस देन इक्वल टू 5, और ये लूप है। ओके, लूप मतलब क्या 1 2 3 4 5, आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे देखो वाइल लूप के लिए सेट किया है, क्योंकि फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, वाइल लूप के लिए मैंने आई प्लस प्लस सेट कर दिया। हाँ, सो यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग है ना, वहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ यूज करेंगे सिर्फ। ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है, जावा और सी प्लस प्लस में सेम ही है, बस उसके नाम अलग है। ओके, बाकी सब सेम ही है। सो ओके, सो दिस कंडीशन टेल्स अस दैट आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1, उसके बाद प्लस प्लस होगा 2 3 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, और 5 आएगा क्या, 5 भी आएगा ऑब्वियसली, इक्वल टू है, मतलब वो छोटा होना चाहिए 5 से या फिर इक्वल होना चाहिए, सो 5 भी वो कंसिडर करेगा। सो 1 2 3 4 5, बट ये कैसे प्रिंट हो रहा है, ये पिरामिड कैसे प्रिंट हो रहा है। So inside this while loop I am creating one for loop which tells us that j is equal to 1, ये है ना पोजीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, देखो पोजीशन क्रिएट कर रहा है मतलब j is equal to 1, j लेस देन इक्वल टू i, अभी i की वैल्यू सपोज 1 है, सो j की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1, लेस देन नहीं है पर इक्वल है, ठीक है, सो 1 प्रिंट होगा। और जो बाकी स्पेस है, क्योंकि 5 स्पेस क्रिएट किए ना उसने, देखो यहाँ पे कितने 5 स्पेस है, लेस देन इक्वल टू 5 है, और i की वैल्यू मतलब i भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और साइड बाय साइड j भी प्रिंट हो रहा है, सो 5 स्पेस है, बट यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ i प्रिंट कर रहा हूँ, प्लस बाकी स्पेस मतलब 1 2 3 ऐसे 1 1 1 1 1 ऐसे 5 बार प्रिंट हो रहा है, बट वहां पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे देखो, ठीक है, मतलब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, बट वो जगह पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस, सो इसीलिए 1 प्रिंट हो गया और ब्लैंक स्पेस। क्योंकि क्यों 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 ही प्रिंट हुआ। उसके बाद 2 है, सो j की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 2, सो वो 2 बार प्रिंट होने वाले, पहले 1 और बाद में 1, सो मतलब 2 स्पेस उसने कंसिडर कर ली 2 2, उसके बाद 3 3 3, जैसे 3 आएगा वैसे 3 3 3, 4 4 4 4 4 टाइम्स एंड 5 5 5 5 टाइम्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, फ्लो समझ में आ गया उतना भी ठीक है। एक बार हम लोग लास्ट में एक बार फिर से प्रोग्राम रिवाइज करेंगे, तब मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जांपल देख रहे थे नेस्टेड लूप्स का, दैट्स व्हाई वी आर ओनली गोइंग थ्रू द main concept of the program. Okay, after finishing all the concept in our chapter, we focusing, I guess in the next lecture we are discussing about this all kind of uh, loops in our C programming language. Clear? Okay, so thank you. रिवाइज करो एक बार ये, और प्रैक्टिस करो खुद से घर पे, ठीक है, थैंक यू।